Hello student, this is Deepak Kumar and today topic is computer hardware chapter 1. In this chapter we will discuss about different hardware elements of computer. Let's see hardware elements of CPU. Firstly, what is hardware elements? Hardware elements are the parts of computer that are physically exist in the nature. We can see it by our naked eye. The hardware devices of CPU can be broadly divided into different parts. First is memory or storage device, second is motherboard, third is processor, four is SMPS switch mode power supply, fourth ports and last is card. One by one see what is memory and storage device. Memory device is a device which is used to store information, and we can also say that which is used to store data into our computer. It is classified into two types. First is called primary memory and second is called secondary memory. Primary memory is also known as main memory. It is that part of CPU which stores the data and instructions that are meant for processing or for the internal management of computer. प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो करंट प्रोसेसिंग को स्टोर करता है. अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर देंगे तो जो भी डेटा इस मेमोरी में रहता है वो लॉस्ट हो जाता है. That's why it is also called volatile memory. इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है. ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड रैम एंड सेकेंड इज कॉल्ड रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. It holds the information temporarily during the going operation of a computer and it is volatile in nature. Second, ROM. ROM stands for read-only memory. It stores a set of predefined instructions for the internal operation of a computer. It is also referred as non-volatile memory or firmware. ये दोनों मेमोरी के बारे में हम लोग देखते हैं आगे. डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड-only memory. RAM is called volatile memory because when we switch off the computer, the data in RAM get lost. That's why RAM is called volatile memory. And ROM is non-volatile memory because it stores set of instructions permanently. That's why it is called non-volatile memory. Speed of RAM is higher than ROM and the storage capacity of RAM is larger than ROM. RAM stores information temporarily and ROM stores set of instructions permanently. These are the differences in RAM and ROM. Let's another memory is called cache memory. It is also part of primary memory. Cache memory is used when a processing is done by CPU and there is a swapping between CPU and RAM. कैसे मेमोरी वो मेमोरी होता है जो CPU जब प्रोसेसिंग करता है और जब डेटा RAM और CPU के बीच में स्वैप होता है उस समय इस मेमोरी को यूज किया जाता है ताकि जो काम हो वो फास्टली हो. ये रैम और रोम से फास्टली वर्क करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फास्टेस्ट मेमोरी. लेट्स सी यूनिट्स ऑफ स्टोरेज. कंप्यूटर अपना लैंग्वेज खुद समझता है और वो लैंग्वेज है 0 and 1. 0 and 1 का मतलब होता है ऑन और ऑफ. सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी डिजिट इन द फॉर्म ऑफ 0 1 और
ऑन और ऑफ। तो हम लोग देखते हैं कि इस 0 1 के यूनिट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो फर्स्टली 0 या 1 को हम लोग बीट से रिप्रेजेंट करते हैं और 4 बिट को मिला के एक निब्बल होता है, इसको हाफ बाइट भी बोलते हैं। और इस तरह ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। हम लोग देखते हैं मेजरमेंट यूनिट्स कैसे होते हैं इसमें। सबसे पहले बीट होता है, इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं जिसमें 1 और 0 रहता है। दूसरा होता है बाइट, जिसको कैप अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, इसमें 8 बिट्स होते हैं। तीसरा है किलोबाइट, 1024 बाइट्स मिला के 1 किलोबाइट बनता है। और इसी तरह 1024 किलोबाइट्स मिला के 1 MB। और इस तरह हम लोग देखते जाएंगे, MB के बाद GB, TB, EB, ZB, YB और BB बनता है। दूसरा मेमोरी होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं या फिर इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग सेव करते हैं वो यहाँ परमानेंट स्टोर होता है। बहुत सारे डिवाइस हैं जो परमानेंट स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव हो गया, DVD हो गया, CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं और इसमें डेटा हम लोग परमानेंट सेव करके रख सकते हैं। अब इसमें भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के भी टाइप्स हैं। पहला मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को ही हम लोग हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क आर द स्टोरेज डिवाइस दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल। ये मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल से बना होता है और देखने में एक प्लेट की तरह, CD प्लेट की तरह होता है, जिसके अंदर डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये एक परमानेंट और सबसे ज़्यादा स्टोरेज स्टोर करने के काम में आता है। ये जो होता है ये मेटेलिक प्लेट्स और उसके ऊपर मैग्नेटिक लेयर का यूज करके बनता है और हर एक प्लेट के ऊपर एक प्लेटर लगा हुआ रहता है एंड इट हैड 2 हेड्स, जो हेड्स उस पर मूव करता है और उसके थ्रू इसमें डेटा सेव होता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के थ्रू चलता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। जैसे CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD तो जैसा आप लोग देखते हैं, इसमें जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है और ये डेटा स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ लेंस। दूसरा होता है DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये CD की तरह ही दिखने में लगता है, लेकिन उससे स्टोरेज कैपेसिटी इसका अधिक होता है। इसका मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी 17.1 GB होता है। तीसरा है ब्लूरे डिस्क। ये दोनों के तरह ही दिखता है, बट इसमें रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ब्लूरे लेंस का यूज करना पड़ता है और इसका मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होता है 128 GB। ये जो ब्लूरे डिस्क है ये ब्लूरे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। तीसरा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? जो कॉमनली हम लोग डिजिटल डिवाइस के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं MP3 प्लेयर्स, जो भी छोटा साइज का मेमोरी है, जैसे पेन ड्राइव हो गया या फिर मेमोरी स्टिक हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ये जितने भी डिवाइस हैं जो ईजिली हम लोग कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं या फिर अटैच कर सकते हैं, उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। इसको रिमूवेबल मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे इसमें पहला जो रिमूवेबल मेमोरी होता है दैट इज़ कॉल्ड पेन ड्राइव। ये क्या होता है? एक छोटा डिवाइस होता है जो
इजी वे में यूएसबी पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और इसमें हम लोग रीड राइट सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें डीवीडी सीडी से अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी का अगला पार्ट, मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक क्या होता है? ये भी डिटेचेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जो डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। ये सोनी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था 1998 में। ये जो मेमोरी स्टिक है ये मेमोरी कार्ड को रीड करने के और राइट करने के काम में आता है। नेक्स्ट सबसे मेन जो हार्डवेयर डिवाइस है वो है मदरबोर्ड। ये जो सीपीयू के अंदर का सबसे मेन पार्ट होता है जिससे सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं और इसको हम लोग मेन सर्किट भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट पोर्ट, सॉकेट एंड स्लॉट्स होते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर के अदर जितने भी डिवाइस हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस सारे इससे कनेक्ट होते हैं। ये जो बोर्ड होता है 7 लेयर में डिवाइड होता है। इस तरह हम लोग देख सकते हैं फिगर में, ये जो फिगर दिया हुआ है ये मदरबोर्ड का फिगर है। नेक्स्ट पार्ट है एसएमपीएस। ये जो एसएमपीएस है इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हुए होते हैं उन सारे पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ये एसी करंट को लेता है और उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करके 5 से 12 वोल्ट की मात्रा में सारे पार्ट्स को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज अनदर मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर which is used to process all the data and the speed of processor is measured in hertz। इसी को हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। कुछ सीपीयू के प्रकार है पेंटियम सीरीज, डुअल कोर, कोर टू डू, एएमडी, i3, i7, ये i5, ये जितने भी हैं ये सारे प्रोसेसर के प्रकार हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर पार्ट्स है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होता है? एक तरह का सॉकेट होता है जिसका यूज करके हम लोग दूसरे डिवाइस अपने कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर हम लोग पेन ड्राइव कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं वो पार्ट को हम लोग पोर्ट्स कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूएसबी पोर्ट्स। इसी तरह मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए या फिर अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग देखते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू हम लोग प्रिंटर, पेन ड्राइव या मेमोरी स्टिक को अटैच करते हैं। दूसरा है सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। ये सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के द्वारा हम लोग हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। ऑडियो पोर्ट, ऑडियो पोर्ट के थ्रू हम लोग स्पीकर और माइक को अटैच कर सकते हैं। नेटवर्क पोर्ट एंड मॉडेम पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट और मॉडेम पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RJ45 केबल और RJ45 पोर्ट। नेक्स्ट है मॉनिटर पोर्ट। सीपीयू से मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट यूज होता है, दैट पोर्ट इज कॉल्ड मॉनिटर पोर्ट। नेक्स्ट इज कार्ड्स। कार्ड्स क्या होता है? तो कार्ड्स जब भी हमको अपने कंप्यूटर में कुछ एडिशनल फीचर्स अटैच करने हैं तो उसके लिए हमको कार्ड्स यूज करना पड़ता है। अपने सिस्टम में कार्ड्स को अटैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको अपने कंप्यूटर में टीवी देखना है तो उसके लिए हमको एक सीपीयू के अंदर कार्ड अटैच करना पड़ता है। दैट इज कार्ड इज कॉल्ड टीवी ट्यूनर कार्ड, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर ही टीवी देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कार्ड्स एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो सिस्टम को अपने अनुसार कस्टमाइज करने के काम में आता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं, या अगर वहाँ भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इंडिविजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चंस भेजकर
उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।